سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم پڑھا، رب تعالی کی حمد کی، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس میں پہلی مرتبہ جب بندہ روزانہ ہو کر تشہد شریف جب پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں کھڑا ہونا بھول جاتا ہے، اور آگے وہ درود شریف اب اس نے پڑھ لیا ہے، تو کافی آگے جا کے سے یاد آئے کہ ہاں بھائی میں نے یہ جو نا تیسری رکعت میں نے اٹھنا ہے، تو اس صورت میں وہ کافی آگے نکل چکا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا سجدہ صاحب لازم ہوگا؟ اگر 4 رکعتی نماز فرض ہے یا سنت المؤکدہ ہے یا وتر کا پہلا قاعدہ ہے، تو اس میں تو یہ کہ اگر التحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد پڑھا یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھا، تو اتنا پڑھتے ہی جبکہ یہ غلطی سے اس نے پڑھا ہے تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کے پڑھا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب یہ پورا درود شریف پڑھے جب بھی سجدہ سہو ہی واجب ہوگا، جبکہ یہ غلطی سے ایسا کر رہا ہے، اور اگر سنت غیر مؤکدہ میں ایسا کر رہا ہے تو صحیح ہے۔ سنت غیر مؤکدہ میں تو وہ پہلی بار جب بیٹھیں گے تو یہ اس کے شفاع ہیں، 2 شفاع، تو یہ دونوں میں تحیات کے بعد درود پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ، پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، افضل ہے۔ نہیں پڑھا تو بھی وہ کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھے تو اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض گھروں میں WC کی ڈائریکشنز وہ درست نہیں ہوتی، اس حوالے سے اگر عرض کیا جائے تو گھر والے کم و پیش کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر جہاں پر WC کے رخ درست نہ ہوں ان کو استعمال کے لحاظ سے کیا احتیاطیں اختیار کی جائیں، اور نیز دوران سفر اگر اس کی درست قبلہ سمت معلوم نہ ہو تو WC آیا یہ رخ درست ہے یا غلط، اس حوالے سے پھر کیا کیا جائے؟ استنجا میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، استقبال قبلہ بولتے ہیں قبلے کا رخ، قبلے کی طرف رخ کرنا، استدبار قبلہ مانے قبلے کو پیٹھ کرنا، یہ دونوں حرام، اور 45 ڈگری سے باہر ہونا چاہیے۔ اگر 45 ڈگری کے اندر رخ کیا تب بھی یہ پیٹھ اور منہ کرنے کے اس میں آ جائے گا، تب بھی گناہ گار ہی ہوگا۔ تو اب اس میں گھر والے نہیں مانتے تو اب ظاہر کہ بے بسی ہے، اپنے طور پر جب بھی استعمال کرے تو ترچھا بیٹھ جائے کہ 45 ڈگری سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح کہیں بھی جائے تو کہیں کسی کے گھر پہ گئے تو مجھے بھی باہر ملک میں تو جانے کا اتفاق ہوتا ہے گھروں پہ،
यहाँ पाकिस्तान में मुश्किल होता है। मैं भी कोशिश करके मालूमात कर लेता हूँ कि किबला किस तरफ है, फिर वो डायरेक्शन देख लेता हूँ। अमूमन ठिकाना होता नहीं है, घरों में गलत बने हुए होते हैं। फिर अपने तौर पर कोशिश की जाए कि बंदा वो जितना हो सके तिरछा बैठ जाए। अब यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। अगर डायरेक्शन का दुरुस्त सिमते किबला का वहाँ पर तयन ना हो सका हो सफर के दौरान, फिर वहाँ पर क्या किया अब जाए? इतना दुश्वार नहीं है। जैसे मोबाइल फोन होता है ना, उसमें भी ये ऑप्शन होता है कंपास, किबले की डायरेक्शन आदमी देख सकता है, या मतलब सूरज वगैरह को देखकर भी अंदाजा कर सकता है। अगर कोई सूरत नहीं है तो गौर करे कि किबला किस तरफ होगा, जिस तरफ जहन जमे उस तरह कर ले। अगर ऐसा है जो बता सकता तो उसको पूछ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। आपकी बारगाह में ये सवाल है कि नमाजी के आगे से किस सूरत में गुजरा जा सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने ये मस्जिदों में भी देखा है कि नमाजी के आगे मस्जिद की टोपी रख के गुज़र जाते हैं, या जो पापोश वाले डब्बे होते हैं उसके आगे से भी गुज़र जाते हैं। तो इसके बारे में हमारी शरई तौर पे रहनुमाई फरमा दें कि किस सूरत में नमाजी के आगे से गुज़रा जा सकता है। सुतरा कम से कम 1 हाथ यानी आधा गज ऊंचा हो। ये पापोश का डिब्बा तो आमतौर पर छोटा होता है, कभी बड़े भी होते हैं, वो अलमारी टाइप के होते हैं, रेक बने होते हैं, तो वो अगर ऊंचा फिर तो वो सुतरा काफी है। अगर सिंगल है तो वो 1 हाथ ऊंचा गालिबन नहीं होता। ये देख रहे 1 हाथ ऊंचा है तो सही है, उससे गुजर सकते हैं। कि मोटाई का भी कोई हिसाब रखना, डंडी है जैसे तो वो उंगली की मोटाई हो कम से कम उसकी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। अगर इमाम मुकीम है और मुक्तदी मुसाफिर है और उसकी 1 रकत इमाम के पीछे रह गई तो बकिया वो रकतें किस तरह अदा फरमाएगा? अब मुकीम के पीछे तो पढ़नी है पूरी, तो 1 चली गई तो वो 4 करेगा ना पूरी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। अगर मुसाफिर मुकीम इमाम है और नमाजी मुसाफिर है तो वो नियत क्या कसर की करेगा या फिर पूरी जिस तरह आम मुकीम की हालत में नमाज पढ़ी जाती है वैसे नियत करेगा? इमाम मुकीम है, उसके पीछे पढ़ना चाहता है जी हाँ तो अब पूरी ही पढ़ेगा। नियत भी पूरी की करेगा? हाँ पीछे से इमाम के 4 रकात ज़ोहर की या इशा की, इसी तरह हो। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है, अगर कोई शख्स अपने वालिद को अपनी वालिदा की कब्र के ऊपर दफना देता है और कहता है कि अल्लाह ताला इसी तरह से तरमुर्दे को उठाएगा, तो क्या ये दुरुस्त है? तो बराबर में भी तो दफन करवाया जा सकता है ना, दोनों फिर भी इकट्ठे उठेंगे ना। लेकिन वो उसी के ऊपर ही दफनाता है। गलत करता है, जायज़ नहीं है इस तरह। आपकी बारगाह में अर्ज है कि जुम्मे वाले दिन जब जमात के लिए ऐलान किया जाता है कि 1:30 बजे जुम्मे की जमात खड़ी हो जाएगी, और अगर बयान करते करते वक्त 10-15 मिनट टाइम ऊपर हो जाए तो वो ऐलान करने वाला गुनाहगार होगा कि नहीं? ये इस तरह गुनाहगार नहीं हो जाता कोई। यानी कि जब ऐलान किया उस वक्त उसकी नीयत 1:30 बजे ही की थी, चाहे ऐलान दूसरे ने किया, लेट खतीब ने किया, तो अब भी वो ऐलान करने वाले का कोई जुर्म नहीं है। और खतीब ही ने ऐलान किया कि 1:30 बजे जमात खड़ी हो जाएगी, तो उसमें अगर खतीब की नीयत ऐलान करते वक्त यही थी कि मैं वक्त की पाबंदी करूँगा, वैसे ही चुकमा देना नहीं था कि यार मैं करूँगा तो 1:45 बजे, 1:45 कहूँगा तो ये मतलब थोड़ा आड़ाउड़ी करेंगे, तो ये धोखा देने के लिए किया, तब जाकर वो गुनाहगार होगा। तो आमतौर पे नियत नहीं होती इस तरह, वो 2-4 मिनट उर्फन भी लेट हो जाए तो इसको इतना मायूब नहीं समझा जाता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। इस्तिखार अहमद अत्तारी, मरकज़ुल औलिया लाहौर, जामिअतुल मदीना मार रोड, दर्जा सादिसा, मातुरिदी कबीना। आपसे सवाल अर्ज़ है कि हम जब मरकज़ुल औलिया से कराची में आते हैं तो ट्रेन के ज़रिए आना होता है, तो बाज़ औक़ात जो होते हैं ना ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन के अंदर नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है, तो चलती ट्रेन के अंदर नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म? सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तहक़ीक़ यही है, बहार शरीयत में भी यही लिखा है
کہ نماز میں استقرار شرط ہے، ٹھہرا ہوا. تو ٹرین جب چل رہی ہے تو چلتی ٹرین میں فرض، وتر اور سنت فجر نہیں ہوگی. ان نمازوں میں استقرار شرط ہے. تو اب اگر ٹرین رکتی ہی نہیں ہے، وقت جانے کا خطرہ ہے کہ وقت چلا جائے گا، تو حکم یہ کہ پڑھ لے اور اگر اس دوران واقعی رک جائے تو پھر پڑھ لے، اور اگر نہیں رکتی تو اب بعد میں جب بھی اترے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا مرشدی زہیب عطاری صدیقی کی بنات ضیاکور سے. میرا سوال یہ ہے کہ شکار کرنا کیسا ہے؟ ضرورت کے وقت، یعنی کہ کھانا ہے یا بیچنا ہے یا علاج کے لیے شکار کیا مقصد کے تحت تو جائز ہے. اور اگر شکار کھیلنا تفریح کے لیے ہوتا ہے، اس سے مقصود وہ جانور وغیرہ کا حصول نہیں ہوتا، تو یہ حرام ہے. شکار کھیلنا تفریحاً، جیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں تفریحاً، پکڑ کے پھر پھینک دیتے ہیں یا جس چیز کو دے دیتے ہیں. اگر ان کو یہ مچھلیاں خود کے تم گھر بیٹھے رہو ہم تم کو مچھلیاں دیں گے تو وہ نہیں مانے گا، تو مزہ آتا ہے. تو تفریح، یہ تفریحاً مچھلی کا شکار بھی اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے. یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو بول نہیں سکتے، ان کو سلام کرنا کیسا؟ حرج تو نہیں ہے سلام کرنا. کیا جواب تو نہیں دیں گے پاپا؟ جواب بڑے کون سا دیتے ہیں؟ اگر کمرے میں بچہ اکیلا ہوا تو؟ نہیں تو بڑے جواب کہاں دیتے ہیں آج کل؟ کر لیتے ہیں یا یوں کر لیتے ہیں یا یوں کر لیتے ہیں. سلام کیا تو جواب دینا تو واجب ہوتا ہے نا، کہاں دیتے ہیں؟ واقعی ایک تعداد نہیں دیتی جواب، اور کما حق کو نہیں دیتی جواب، صحیح اس کا تلفظ نہیں ہوتا ان کا. تو بہرحال یہ کہ بچے کو بھی سلام کرنا چاہیے، سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے بچوں سے بھی. اب یہ کہ بالکل ہی شیر خوار بچہ ہے، اب اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچے عام طور پر جواب دینے پر اتنا قادر نہیں ہوتے، نہ بیچاروں کو جواب کا پتہ ہوتا ہے. سبھی ہوتا ہے، جیسے بچہ میری گود میں ہے. گود اس کو نہیں بولتے، اس کو بازو بولتے ہیں. جی گود وہ جو بیٹھ کے بٹھاتے ہیں نا جی، رانوں پہ، وہ گود کہلاتی ہے. بچہ میرے بازو میں ہے اور کوئی سامنے سے آنے والا مخاطب ہو کے، مخاطب ہی بچے سے ہو کے سلام کرتا ہے، اس کو بتا میرے کو کرنے کے میں جواب دوں، بچے کو سلام کرتے ہیں، اس سے ہاتھ مصافحہ کرتے ہیں، اس سے دریافت کرتے ہیں حال کیسے ہیں آپ کے. بچہ کیا بولے؟ میں کیا بولوں اس پر؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں، عرض کریں گے ایسا سلام کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا سلام کرنے میں تو میرا جائے ہی نہیں نا، سلامتی کی دعائی تو ہے یار. جیسے بچے کو بولتے خوش رہو، اب وہ نہیں سمجھتا، سلامت رہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو بچے کو دعا دی. آمین جزاک اللہ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری تلاش تھی، میری جستجو تھی، مجھے وہ میرا مال مل گیا. طاہر بھائی، استغفر اللہ، تقوی فتویٰ، یہ فتویٰ ہی ہو سکتا ہو کہ میں نے ان کو ڈانٹا تھا. اب وہ ڈانٹنے کا ایسے بھیڑ بھاڑ میں ہو سکتا ہے اگلا محسوس نہ بھی کرے اس کو، تو جب وہ چھینا جھپٹی کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اگلا جو اس کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ رزق تو ہے نا. مگر یہ ان کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہے، ناراض ہوتی تو یہ انداز ہی نہ ہوتا. انہوں نے یہی فرمایا، مجھے محسوس ہی نہیں کیا، میں نے فیل ہی نہیں کیا ہوگا، میں بھی کہ شاید فیل ہی نہیں کیا ہوگا. تو پھر بھی میں تو معافی آپ سے معافی مانگ رہے تھے. نہیں، یہ تو ان کا تو قصور ہی، یہ تو دیوانگی میں تھے، اور دیوانے تو بولتے ہو تھپکی لگا دو اور یہ دے دو وہ دے دو، ان کا قصور کیا بیچاروں کا. بہرحال یہ کہ انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا. ماشاء اللہ ان کو جزا کر. چلو دل جوئی کے لیے وہ تحفہ دے دیتا ہوں. گنبد غوثیہ، اللہ اور گرے نہیں گئی. ارے ارے یا ارے ارے ارے
चलो ये तो आगे बैठने का मौका मिला। थपकी लेने के लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा, और कहीं गिर गिरा गए तो मैं उतरा तो। अरे 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पे नूर की मुर्शिदी अत्तार पे नूर की बरसात, मुर्शिदी अत्तार पे नूर की मुर्शिदी अत्तार पे। अभी ना इनका थपकी का मुतालबा भी पूरा हो गया ना। अल्लाह का शुक्र है कि बगैर एक खलिश थी दिल में निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स बैठा हुआ है, वो खुद को नहीं, उसका पीर, अपने आप को पीर ज़ाहिर करता है, और उसका जो मुरीद आकर कहता है कि आपने जो मुझे सबक दिया था वो मैं पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद में उठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो वो उसको मुतमईन यूँ कर रहे हैं कि 17 साल तो नबी को भी रो रो के मांगना पड़ा, फिर जाके बात बनी, और रब ताला बाज का तो जल्दी सबक पे ही सुन लेता है, जल्दी यानी सुन लेता है, और बाज का तो रो रो के थक जाओ वो सुनता ही नहीं है। यहाँ सुनता ही नहीं से मुराद वो उसका नतीजा जाहिर नहीं होता, कबूल नहीं फरमाता, ये मुराद है ना कि सुनना। अल्लाह ताला कान से पाक है जी, सुनता है मगर कान से पाक है, वो बगैर कान के, वो जिस तरह उसकी शान के लायक है। तो और इसमें कोई शक नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। हज़रत सैयदना याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम बरसों गिरिया उजारी फरमाई, सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बरसों तक गिरिया उजारी फरमाई अपने उस दाने गंदुम की वजह से। और हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम भी बरसों तक बीमारी की आपने तकलीफ उठाई, और इस तरह के और वाक़यात मिल सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सुनता ज़रूर है। इसकी मिसाल एक ये दी है फ़ज़ाइल दुआ में, आसनुल विआल आदाब दुआ, कि बुजुर्ग का वाक़या कि वो दुआ मांग रहे थे, वो पूरी नहीं हो रही थी, फिर उनको फरमाया गया कि तुम्हारा मांगना हमको पसंद आता है, जो गिरिया उजारी करते हो पसंद आता है मांगना तुम्हारा। और बाज वो जो उसको पसंद नहीं होते वो बंदे, अल्लाह ताला को उनका मांगना पसंद नहीं होता, उनको जल्दी उनकी मुराद दे देता है। इस तरह के मज़ामीन हैं। अभी जो आप अल्फाज कह रहे हो, अल्फाज तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान के लायक नहीं है। वो उसने क्या गुफ्तगू की, अल्फाज थे कुछ बिल्कुल डायरेक्ट थे कि 17 साल तो नबी को भी रोना पड़ा है, ये अल्फाज अच्छे नहीं है। मतलब हाँ जी, 17 साल तो बहुत थोड़े हैं। सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम तो 300 साल गिरिया उजारी फरमाई। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत है, इनका रोना भी इबादत था, अल्लाह को पसंद था, नबी थे, मासूम थे। तो ये मतलब अल्लाह ताला किसी का नतीजा देर में जाहिर फरमाए, किसी का फौरन जाहिर फरमाए, ये उसकी मशीयत पर है। ये मतलब इसमें कोई जो आप का जो मजमून बनता है ना जो गुफ्तगू का, उसमें तो मुझे कोई ऐसी बुराई नजर नहीं आ रही। वो जो आखिर में गुफ्तगू थी अल्फाज मजे के नहीं है, अल्फाज अच्छे नहीं है, रोना पड़ा और ये मतलब थोड़ा अच्छे अल्फाज नहीं है। जो आखिरी अल्फाज थे बापा, उस पे कुछ हुआ था कि अल्लाह सुनता ही नहीं है, ये कुछ इसलिए ज्यादा ये जुमला सुनता नहीं है ना, अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता, तवज्जो नहीं फरमाता, ये मुराद होती है कि अल्लाह मेरी सुन ले। तब इसका क्या मफ़हूम मुखालिफ थोड़ी निकालेंगे कि अल्लाह नहीं सुनता, कि अल्लाह समी और बसीर है, अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। तो बहरहाल के मेरे ख्याल में तो ये जो आप फरमा रहे इसमें अल्फाज तो मुझे नहीं पसंद आ रहे। तो ये अंबिया किराम की तो मिसालें मैंने दी ना आपको कि बहुत देर में असर जाहिर हुआ, वो आपकी भी समझ में आ गया होगा। तो मशहूर है ये बातें, तो बातों का जल्दी अल्लाह अता फरमा देता है। अब पीर साहब के क्या अल्फाज थे, मुरीद ने क्या समझे, आपको उन्होंने क्या कहा, आपने क्या समझा, मैं पास बैठा हुआ था। अब तो आप ठीक है, वो है आपका हफ्जा अच्छा होगा, लेकिन यार हुस्न जन का जाम
पिला दो। पिला जज़ाकल्लाह पापा, बहुत बहुत शुक्रिया पापा। आपने कोई फतवे तो नहीं दे दिए उसको, तकफीर तो नहीं कर दी? कुछ खामोशी पापा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद असलम शहजाद अत्तारी, पाक अखी कबीना, हाफिजाबाद। या सैयदी, सवाल ये है कि हमारे यहाँ पंजाब में जो आमिल हजरात हैं वो जिसको दम वगैरह करते हैं या जो अमल वगैरह करते हैं तो उसको कहते हैं तुम पर सूदक बंद है, सूदक की पाबंदी करनी है, यानी फलां जगह अगर फोतगी है तो वहाँ नहीं जाना, खाना नहीं खाना, तो यहाँ काफ़ी मसला होता है। तो आप इसके बारे में इरशाद फरमाएं कि इसके बारे में क्या हुक्म है, सूदक है क्या, इसको क्लियर नहीं हो रहा। सूदत में भी पहली बार लफ्ज सुन रहा हूँ। ये तो मैं समझा कि जचकी में नहीं जाना है, मैयत में नहीं जाना, ये होता है इनका, और इसी को गालिबन सूदक कहते हैं। बड़े गोश्त की पाबंदी भी लगाते हैं। हाँ, वो है कि शोरबे के साथ खा लें, बोटी ना खाएं। यार अपने यार वो दावत इस्लामी के जड़े बसते हैं ना, जी जी, उधर कोई पाबंदी नहीं डालते। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिंडी भटिया के इलाके कोट नके का इमाम मस्जिद हूँ और सन 88 में आप तशरीफ़ लाए थे पिंडी भटिया, उस वक्त से मैं वाबस्ता हूँ। उस वक्त से मैंने मुल्तान इज्तिमा में भी आपके जाते रहे हैं गाड़ियाँ भर भर कर। माशाअल्लाह। तो हमारे बेटे जो हैं इन्होंने ये 4 महीने का मदनी काफिला यहाँ भी किया है, 63 दिन का कोर्स में अपने बेटों को करा दिया है। तो यहाँ इतना माहौल था कि हम इन ड्रामे देखते थे, बैटरी रखी हुई थी, सारे मोहल्ले वाले हमारे घर देखते थे। जब आपका बयान सुना और सारे घर वाले मदनी माहौल में आ गए। माशाअल्लाह। 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों ने मदनी बुरखा पाड़ा हुआ है। माशाअल्लाह। और हाफजा है, कारियां हैं, इज्तिमा है, मुबलगा है, इज्तिमा कराती है। माशाअल्लाह। और बेटे हैं और फिजानी मदीना वहाँ हमने अपनी कोशिश से बनाया है, वो भी सारा बनाकर दावत इस्लामी के नाम लगा दिए। माशाअल्लाह। तो हम ये मजीद आपसे दुआ करते हैं कि मजीद हमें इस्तकामती और हम धूमें मचाएं। आमीन। और मैंने अपनी दोनों लड़कियां, तीनों लड़कियां का मदनी माहौल में रिश्ता किया है, बरादरी ने देखी। लड़कों का भी दोनों कर दिया है मदनी माहौल में। अब भी आइंदा 2 लड़कियां और 1 लड़का है, कुछ मदनी माहौल में रिश्ता करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला उनका सर, अल्लाह असबाब पैदा करे। गुजरात से हाजिर हूँ। पापा एक शेर की वजाहत आप फरमा दें। दरिया का जोश नाव ना, बेड़ा ना ना खुदा। अगर आपका हुक्म हो तो जरा गुनगुना के अर्ज कर सकता हूँ। दरिया का जोश नाव ना, बेड़ा ना ना खुदा। मैं डूबा तू कहाँ है, मेरे शाहले खबर खबर। मैं डूबा तू कहाँ है, मेरे शाहले खबर। बापा कसम खुदा दी तुसी बड़े सोने हो। काश दिल भी सोना हो जाए। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, हम मेरे पीर दी हर दम। पावे लखा करोड़ां दा वैर होवे, पावे लखा करोड़ां दा वैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, हम मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। बापा दुआ भी फरमा दीजिए कि अच्छा मुबल्लिग जैसा आप चाहते हैं वैसा दावत इस्लामी वाला बन जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे नात। इस शेर की वजाहत फरमा दीजिए आप। दरिया का जोश नाव ना, बेड़ा ना ना खुदा। यानी इसके लफ्जी माना तो ये है कि
मैं दरिया के तूफान में फंस गया हूँ, ना मेरे पास कोई किश्ती है दरिया जोश में, न नाव, न बेड़ा, न किश्ती है न बेड़ा। ये किश्ती की किस्म है, छोटी बड़ी किश्ती कोई नहीं, और कोई मल्लाह ना खुदा मने कप्तान जो किश्ती चलाता है वो भी नहीं है। बस आका में डूबा ही चाहता हूँ। आप कहाँ हैं? करम फरमा दें, मुझ पर करम फरमा दें, वो मुझे बच्चा ले। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा, मेरे शाले खबर खबर। मेरा कौन तेरे सिवा, मेरे शाले खबर खबर। लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। दरिया का जोश ना बेड़ा ना खुदा। दरिया का जोश ना बेड़ा ना खुदा। मैं डूबा तू कहाँ है, मेरे शाले खबर खबर। मैं डूबा तू कहाँ है, मेरे शाले खबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जुमा की नमाज होती है, फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं तो लोग मस्जिद से निकल जाते हैं, तो हो सकता है वो सुनते पहले अदा कर लेते हों, तो क्या फ़र्ज़ों से पहले सुनते या नफल वगैरह अदा कर लेने जायज़ हैं या नहीं? तो जो फर्जों के बाद निकल जाते हैं वो सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ते, यह कैसे पता चला? नहीं, अगर पढ़ लेते हैं तो वो जायज़ है? पहले नहीं पढ़ सकते, फर्जों के पहले वो कैसे पढ़ेंगे? उनका वक्त बाद में शुरू हुआ ना। फर्जों के बाद जो सुन्नतें हैं तो घर पे पढ़ सकते हैं, दुकान पे जाके पढ़ते होंगे, बारी बारी जुम्मा पढ़ने बाद जाते होंगे भाई, या फिर वो छोड़ देते हैं। ये अपने क्यों बदगुमानी करें? हो आ रही हो बदगुमानी करने की, आपको किसने इजाजत दी? आप उसने जन रखे घर पे पढ़ते होंगे। घर पे सुन्नतें पढ़ना वैसे भी साबित है सुन्नत से। जी जज़ाकल्लाह। सरसब्ज़ इस गुलजार